वनचारे यमुनातीरवनचारे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चन्नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तविंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के पहले अध्याय से 15वां श्लोक। तो पुस्तक से पढ़ना कठिन है, इसलिए ट्रांसलेशन और परपोट अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी में कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कृपया श्लोक को दोहराइए। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम् इव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम् इव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम् इव भास्करः। पढ़िए। माताजी। वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये सब इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर बाद में। केचित्, some people, केवलया भक्त्या, by executing unalloyed devotional service, Vasudeva, to Lord Krishna, the all-pervading Supreme Personality of Godhead. Parayana, completely attached only to such service without dependence on austerity, penances, cultivation of knowledge and pious activities. Agham, all kinds of sinful reactions. Dhunvanti, destroy. Karshnena, completely, with no possibility that sinful desires will revive. Niharam, fog. Iva, light. Bhaskaraha, the sun. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Only a rare person who has adopted
Complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. Purport. In the previous verse, Shukdev Goswami gave the example, purport काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग आधा पढ़ने के इंस्ट्रक्शन और परवानगी मिला है, तो हम लोग आधा पढ़ेंगे. In the previous verse, Shukdev Goswami gave the example that the dried leaves of the creeper beneath a bamboo tree may be completely burnt to ashes by a fire. Although the creepers may sprout again because the root is still in the ground. Similarly, because the root of the sinful desires is not destroyed in the heart of a person who is cultivating knowledge, but who has no taste for the devotional service, there is a possibility that its sinful desires will reappear, as stated in Srimad Bhagavatam. Shreyaha Shritim Bhaktim Adasyate Vibho Klishantiye Kevala Bodha Labdhaye. Speculators who undergo great labor to gain a meticulous understanding of the material world by distinguishing between sinful and the pious activities, but who are not situated in the devotional service, are prone to material activities. They may fall down and become implicated in the fruitive activities. If one becomes attached to devotional service, however, his desires for the material enjoyment are automatically vanquished without separate endeavor. Bhakti pareshan abho viraktir anyatra cha. If one is advanced in Krishna consciousness, material activities, both sinful and pious, automatically become distasteful to him. That is the test of Krishna consciousness. Both pious and impious activities are actually due to ignorance, because a living entity, as an eternal servant of Krishna, has no need to act for his personal sense gratification. Therefore, as soon as one is reclaimed to the platform of devotional service, he relinquishes his attachment for the pious and impious activities and is interested only in what will satisfy Krishna. This process of bhakti, devotional service to Krishna, Vasudeva Parayana, relieves one from the reactions of all activities. Since Maharaj Parikshit was a great devotee, the answer of his Guru, Shukdev Goswami, concerning Karmakanda and Gyankanda could not satisfy him. Therefore, Shukdev Goswami, knowing very well the heart of his disciple, explained the transcendental bliss of devotional service. The word kechit, which is used in this verse, means a few people but not all. Not everyone can become Krishna conscious, as Krishna explains in the Bhagavad Gita. Manushyanam sahasreshu kasyid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kasyid mam vetti tattvataha. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Practically, no one understands Krishna as he is, for Krishna cannot be understood through the pious activities or attainment of the most elevated speculative knowledge. Actually, the highest knowledge consists of understanding Krishna.
Unintelligent men who do not understand Krishna are grossly puffed up, thinking that they are liberated or have themselves become Krishna or Narayana. This is ignorance. To indicate the purity of bhakti, devotional service, Srila Garupa Goswami says in Bhakti Rasamrit Sindhu, Anyabhilashita shunyam jnana karmadi anavritam anukulena krishnanu bhaktiruttamaha. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desires for material profits or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. Srila Rupa Goswami further explains that bhakti is kleshagni shubhada, which means if one takes to devotional service, all kinds of unnecessary labor and material distress ceases entirely and one achieves all good fortune. Bhakti is so powerful that it is also said to be moksha lagutakrit. In other words, it minimizes the importance of liberation. Non-devotees must undergo material hardships because they are prone to commit sinful fruitive activities. The desire to commit sinful actions continues in their hearts due to ignorance. These sinful actions are divided into three categories: pataka, mahapataka, and atipataka, and also into two divisions, prarabdha and aprarabdha. Prarabdha refers to the sinful reactions from which one is suffering at the present, and aprarabdha refers to the source of potential suffering. When the seeds beej of the sinful reactions have not yet fructified, the reactions are called aprarabdha. These seeds of the sinful actions are unseen, but they are unlimited, and no one can trace when they were first planted. Because of the prarabdha, sinful reactions that have already fructified, one is seen to have taken birth in a low family or to be suffering from the other miseries. When one takes to the devotional service, however, all phases of the sinful life, including prarabdha, aprarabdha and bija, are vanquished. In Srimad Bhagavatam, Krishna tells to Uddhava, I'll read the translation, My dear Uddhava, devotional service in relationship with me is like a blazing fire that can burn to ashes all the fuel of sinful activities supplied to it. How devotional service vanquishes the reactions of the sinful life is explained in Srimad Bhagavatam in a verse spoken during Lord Kapil Dev's instruction to his mother Devoti. My dear Lord, if even a person born in the family of the dog-eaters hears and repeats the chanting of your glories, offers respect to you and remembers you, he is immediately greater than a Brahmana and is therefore eligible to perform sacrifices. Therefore, what is to be said of one who has seen you directly? There are more glories of devotional service. इसके बाद भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोधीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करें। बहुत विशेष वर्ष है, काफ़ी फेमस है, मगर दुर्भाग्य ये है कि मेरा नंबर लग गया वर्ष का प्रवचन देने के लिए। कोई और अच्छे जिन्होंने भक्ति बहुत अच्छे से की होती थी वो शायद और अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। तो मैंने कल ये जो शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद है, तो इसमें इसको स्टडी करने की कोशिश की। क्लास देने के टाइम पे सबसे अच्छा थे, पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये जो मोस्ट अवेटेड वर्स है, अभी जो श्रृंखला चल रही है, दोनों के बीच में जो चर्चा चल रही है, उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन कहाँ शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे हैं हमने सुना था। तो परीक्षित महाराज की परीक्षा चल रही है, मगर वो पास हो रहे हर परीक्षा में। और जितने भी शुकदेव गोस्वामी मार्ग उनको बताते हैं, तो उसके बीच में कुछ त्रुटियां हैं जिसकी वजह से जो साधक है वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हमने तो श्रीमद् भागवतम के मैंने परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज से कल सुनने की कोशिश की, ये सब पूरा कॉन्वर्सेशन। तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि एक साधक है अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है वो, और उसके कौन से मार्ग उसको उपलब्ध हो सकते हैं, कौन से मार्ग उसके लिए अवेलेबल है, इसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो कर्म और ज्ञान के मार्ग के बारे में चर्चा हो चुकी है, और जिसमें परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को बताया कि ये मार्ग काम नहीं करने वाले हैं। तो शिष्य का मतलब होता है, राधा गोविंद महाराज वहाँ पे शेयर करते हैं कि जो भी गुरु ने बोला हाँ कर देने का, बस कुछ समझ में ठीक है नहीं है, जहाँ पे प्रश्न है समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे प्रश्न करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रामाणिक शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के आगे हाँ बोल देने का, बाद में बोलने का, ये तो काम ही नहीं करता है। इससे अच्छा है कि पहले ही बोल दो कि ये जमने नहीं वाला है। तो इसमें ये जो मार्ग है, इसमें कुछ क्या बोलते हैं उसमें कि एक प्रकार का विरोध वाला भाव है कि जो कर्म का मार्ग है कि हम अगर कोई पाप करते हैं तो हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए। तो ये इसमें इन दोनों में विरुद्ध भाव है।
ज़्यादा हमने उस पर ऊपर चर्चा नहीं की है बाकी की क्लासेस में। तो उसमें कि अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और उसको बोलो प्रायश्चित करो, ये उसके भाव के प्रतिकूल है। पाप क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आनंद की प्राप्ति करनी है, भोग करना है। और तपस्या का क्या मतलब होता है कि अपने आप को दुख दो या प्रायश्चित करो। प्रायश्चित में दुख भोगना पड़ता है। अगर किसी का भाव है कि मुझे आनंद प्राप्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद प्राप्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भोग लेना है, उसको बोलो तुम ये कार्य करो जिससे तुमको दुख होने वाले है। बोले ये तो उल्टा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका एक उदाहरण हम, ये सब वियर्ड थिंकिंग होती है। वियर्ड थिंकिंग का मतलब होता है कि उसको ये बोलना कि आप तपस्या करो, ये उनको जमने नहीं वाले। परीक्षित महाराज भी वही बोल रहे बाद में। एक तो बहुत सारे करने ही नहीं वाले हैं लोग, इस तरह के लोग तो कम से कम करने नहीं वाले, जो पाप करने के अंदर रत है, वह इस तरह के तपस्या या प्रायश्चित करने के मूड में नहीं रहेंगे। जैसे हम अर्जुन को देखते हैं, कुछ भक्त लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि अर्जुन जो कारण देते हैं लड़ाई न करने के, उसमें पहला कारण देते हैं कि इनको कैसे मार सकता हूँ मैं, ये तो मेरे सगे संबंधी है, कंपैशन, उसका करुणा है। और दूसरे आगे के कारणों में वो बोलते हैं कि ये सब लोग नहीं रहेंगे तो मैं किसको दिखाऊंगा, मैं राजा बन गया, मैं आनंद कैसे उसमें प्राप्त होगा। कि अगर किसी को अपना जो राज्य कारभार है, जो राजा बना है, वो दिखाना है तो करुणा नहीं रहती उधर। एक तो करुणा होती है, एक तो दिखावा होता है। जिन लोगों के हृदय में करुणा होती है वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। और जो अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने राज्य के बारे में, खुद राजा बनने के बारे में, उनके जीवन में करुणा नहीं दिख सकती है। तो ये विरुद्ध भाव है दोनों। मतलब भक्ति के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हम सोचते रहते हैं दिमाग में, इस तरह के वियर्ड थिंकिंग होता रहता है। कभी ये भाव आता है, कभी वो भाव आता है, कभी ये भाव आता है, कभी करुणा आ जाती है, कभी एंजॉयमेंट आ जाती है, तो कभी, तो इसलिए ये कर नहीं सकते हैं लोग डायरेक्टली देखा जाए तो। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी चर्चा करते हैं ज्ञान मार्ग की, कि अगर किसी को ज्ञान दिया जाए, जैसे कि वो उदाहरण देते हैं कि ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, उधर वो 240 वोल्ट, 440 वोल्ट, और उसके ऊपर वो हड्डी सब दिखा है, तो फिर वहाँ पे कपाल और दिखाया जाता है। तो फिर क्या होगा कि हाँ भाई नॉलेज हो गया, भाई दूर रहेंगे, इससे हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो ज्ञान की वजह से वो पाप करने में डर रहा है। मगर ऐसा बहुत रेयर होता है, वो सिर्फ 440 वोल्ट को ही होता है, 5-10 वोल्ट के इसको गले में लटका के घूमते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि तो ये ज्ञान का जो मार्ग है वो कंप्लीट मार्ग क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें भी तपस्या, ब्रह्मचर्य न, क्षमे न, दबे न, इतना सब करना है। तो ये भी जीव के लिए कठिन काम है, क्योंकि वहाँ पे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर बोलता है कि हाँ आपका जो दवाई है, आपका जो डिसीज़ है, रोग है, उसके लिए एक दवाई है। क्या दवाई है? बोले सुमेरु पर्वत के शिखर पे एक जड़ी बूटी है, वहाँ पे जाके वो लेके आके आप खाओगे तो मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि आपका जो रोग है पूरा खत्म हो जाएगा। अभी लोग इधर से दूर डॉक्टर की तरफ ठीक से जा नहीं सकते हैं, कभी कभी छोटी सी दवाई दी वो भी पालन नहीं कर सकते। अगर उसको बोला कि सुमेरु पर्वत के ऊपर जाके वहाँ से जड़ी बूटी लेके आओ, तो वो क्या करेगा? है कि नहीं? वो ये पालन नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो मार्ग है, ये सारे मार्ग बताए गए हैं
ये सब मार्ग बड़ा कठिन काम है पालन करना। मगर इसलिए उन दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि कोई तो ऐसा मार्ग बताइए कि परीक्षित महाराज अलग अलग प्रकार से शुकदेव गोस्वामी को बता रहे हैं कि कोई ऐसा मार्ग बताइए जो पालन करना आसान होगा, और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो पूरा रहेगा, कंप्लीट रहेगा। कुछ ऐसा मार्ग बताइए, या आधा अधूरा काम होके कुछ फायदा नहीं है। कर्म और ज्ञान का मार्ग है कुछ हद तक, मगर बहुत कम लोगों के लिए एक तो लगेगा। जैसे कि कल हम एक भक्त के साथ चर्चा कर रहे थे, बोले हम बाहर के थे तो कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बोल रहे थे कि हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें पता है क्या बोलना चाहिए, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहिए, ठीक है, सब सारे वो चक्र है, ये है, वो है, सब ठीक है। मगर हमारे एक भक्त बोलते हैं यहाँ पे गोविंदा में पिज्जा खा के क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं हम? पिज्जा खाने का, ऊपर से स्प्राइट पीने का, सोडा पीने का, बाद में बोलने का भी कुंडलिनी शक्ति। उसको जंगल में जाना चाहिए, फल खाना चाहिए, झाड़ से गिरे हुए, शांत जगह पे रहना चाहिए, तब आपके यहाँ दूसरे ही चक्र जागृत हो जाएंगे। इधर घोष पूना के शहर में घूमने रहेंगे तो वो तो, और उसके लिए कुछ मेहनत भी करने की जरूरत नहीं, घूम के आ गया तो हो गया बस। तो इसलिए कि ये सब करने के लिए आसान काम नहीं है। तो परीक्षित महाराज और अर्जुन एक आम आदमी का भूमिका निभा रहे हैं वहाँ पे, और भगवान को इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते और परीक्षित महाराज ये चीज़ों को पालन नहीं कर सकते। 7 दिन 7 रातों तक खाना पीना छोड़ के, नींद छोड़ के अगर कोई बैठ सकता है तो शुकदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं वो पालन कर सकते हैं परीक्षित महाराज। मगर परीक्षित महाराज खुद के लिए भागवतम सुनते बैठते नहीं, तो उनको सब पता था। ये जो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर जनरल आदमी को ये पूछा जाए, कितने सारे लोग होते हैं दुनिया में, कितना ज्ञान होता है उनके पास, मगर छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। तो ये सिंपल बात है, ये कौन करेगा? ये तपस्या, ब्रह्मचर्य, शमेन, दमेन कौन करते बैठेगा? ये कुछ होने नहीं वाला किसी से। वो उस जड़ी बूटी की तरह है, वो सुमेरु पर्वत की जड़ी बूटी की तरह है, मगर एक्सेसिबल नहीं है। क्या करोगे आप उसका? है कि नहीं? कुंडली भी है, सब है, उसका षड चक्र है, सब कुछ है, मगर करेगा कौन? वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो इसलिए किसी को बोला अभी कैलाश पर्वत पे सोना है, लेके आ जाओ, मंदिर बांधना है हमको, है उधर सोना, मगर आप क्या करोगे? आपको थोड़ी एक्सेसिबल है वो। तो इसलिए वो ये सारे सिस्टम, इसका मतलब ये नहीं कि जो मार्ग बताया शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वो गलत है, ऐसा नहीं है, बार है बराबर, मगर करेगा कौन? वो भी तो एक बड़ा प्रश्न है। महाराष्ट्र में एक कहावत है, कहते पण वळत नहीं, सब समझ में आता है मगर होने नहीं वाले है कि नहीं? तो इसलिए हमें जो लास्ट में परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी जब बात में बता रहे हैं कि केचित केवल या भक्त्या, तो थोड़ी सी भी भक्ति अगर कोई चालू कर देता है, थोड़ा सा भी, तो बहुत कुछ चीज़ों पर आप आगे बढ़ जाता है आध्यात्मिक या इस लेवल पे जिसमें उसके हृदय के जो पाप करने की प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे परपोर्ट में जितना हमने पढ़ा उसमें प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं कि उसे भगवान के अस्तित्व की, भगवान के साथ उसके संबंध की एक टेस्ट उसको एक चखने को मिलता है कि इतने सुंदर भगवान, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। तो उसकी वजह से वो बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो उसको पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है, वो छोड़ने के लिए उसके अंदर बल आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जैसे हमें बताती है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, किसी से कुछ छुड़ाना है तो उसका एक
आसान तरीका है छुड़ाने का कि उसको कोई और अच्छी चीज़ जिससे उसको छुड़ाना है, उससे कोई और अच्छी चीज़ उसको दे दी तो शायद वो पहले की छोटी सी छोड़ देगा। बच्चों के जीवन में हम ये देख सकते हैं, उनसे कुछ लेना बहुत मुश्किल काम होता है, वो अड़ जाते हैं, बस लेना नहीं लेना है तो नहीं देना है तो नहीं देना है। मगर आपको फिर से लेना ही है तो फिर आप उनको कुछ तो दे दो। जैसे बंदर होता है, वो लेके जाता है कुछ तो, फिर उससे लेना नहीं हो सकता है, आप दे दो उसको कुछ तो, फिर वो लेने के चक्कर में जो आपको वापस चाहिए वो छोड़ देगा वो। तो यहाँ पे भक्ति व्यक्ति करता है कि भुवनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। जैसे उसको वो ढूंढ रहा है इस दुनिया में, क्या ढूंढ रहा है, कुछ आनंद की खोज कर रहा है। मगर जब भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, खास करके भक्ति के द्वारा, तो वो उस आनंद के, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत जगह पे लिखते हैं इस बात को, क्या लिखते हैं, आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तरे, भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तरे, सब चेष्टा करे तव इच्छा मत, सब चेष्टा करे तव इच्छा मत, थाकिया तुम्हारा घरे और द्वारे, समथिंग। तो इसमें अगर कोई डिवोटी, अगर कोई भक्त भगवान की सेवा करना चालू करता है तो धीरे धीरे उसको भगवान के साथ संबंध की अनुभूति होती है, और उस आनंद में वो बाकी की चीज़ों को ना बोलने की उसमें जो बल है वो आ सकता है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है। वो अज्ञान को भी नष्ट करता है। बार बार हम लोग सुनते हैं हम कौन हैं, हमारे जीवन का अस्तित्व किस लिए है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। तो इस ज्ञान को समझ के उसके अंदर जो खुद भोक्ता बनने की जो इच्छा है, ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बोलते हैं, कुछ लोगों का इग्नोरेंस, कुछ लोगों का अज्ञान इतना बड़ा है कि कुछ देर में वो खुद को ही भगवान मानना चालू कर देते। ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस, सबसे बड़ा अज्ञान है। मगर ये भी एक अज्ञान है कि हम ही खुद भोगता है, हमको कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, मगर खुद हम अपने आप को खुद भगवान है, इस तरह से ही हम बर्ताव करते हैं। मगर जब हम भगवान के दास है ये पता चलता है तो उसका वो जो सारा जो प्रयत्न है, वो है कि नहीं, भगवान बनने की जो कोशिश चल रही है वो सब खत्म हो जाती है, वो शांत हो जाता है। जो हमारे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मगर इसमें कृष्ण भक्त मतलब कि कृष्ण भक्त का लेवल लग जाएगा तो फिर शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि उस व्यक्ति को निष्काम भी होना चाहिए। यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, वासुदेव परायण के बारे में चर्चा करते हुए श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि उसका भक्ति का जो उद्देश्य है वो भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए। तब जो श्लोक में इफेक्ट बताया गया है, जो श्लोक में परिणाम बताया गया है, अघम धुन्वंती कार्ष्णिक निहार ये भास्कर, उसके हृदय के अंदर के सारे जो पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, उसने किए वाले पाप है, सारे निकल जाएंगे। वो कब जाएंगे? वासुदेव परायणा, भगवान के साथ उसका संबंध है, भगवान के साथ उसको आकर्षण है, भगवान की सेवा के साथ, भगवान की प्रसन्नता के साथ, इस भावना से वो कर रहा है। वासुदेव परायण होना चाहिए, वासुदेव महाप्रसाद परायण नहीं होना चाहिए। मतलब हम बहुत सारे परायण हो सकते हैं, वासुदेव महाप्रसाद पिज्जा परायण। वासुदेव परायण मतलब भक्ति में खास करके श्रील प्रभुपाद हमको बहुत बार बताते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है मगर आसान नहीं है। इतना सिंपल है, बाकी सारे जो प्रोसेस, बाकी सारे जो पद्धतियाँ बताई गई है, जैसे कर्म बताया गया है या ज्ञान का मार्ग बताया जिसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य, शमेन, दमेन, ये सारे कार्य बताए हैं। इसके तुलना में भक्ति के कार्य
आसान है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब छोटे बच्चे से अज्ञानी से कोई भी कर सकता है इसको, बड़ा आसान काम। मगर उसके भावना का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है कि किस लिए कर रहा है। फिर से भोक्ता बनने का, फिर से खुद के इच्छाओं के द्वारा प्रेरित अगर भक्ति है, तो फिर ये जो तुरंत अगर भक्ति करता है व्यक्ति, तो उसके सारे पाप और उसके पाप करने के इच्छाएं सारे नष्ट हो जाती है। ये जो इफेक्ट है, ये जो परिणाम है, ये जो देखना है, तो उस तरह की भक्ति भी करना जरूरी है। कृष्ण को समझ के भक्ति करना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वन हैज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, बट वन कैन प्रैक्टिस डिवोशन सर्विस विद प्योर हार्ट। वासुदेव परायण, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सेवा करना चाहिए। तो ये भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कभी कभी कृष्ण भक्त भी अशांत दिखता है हमको, फिर क्या प्रॉब्लम है अभी? हमें अगर कोई पूछा जाए आपका मार्ग क्या है, भक्ति का मार्ग, आप क्या हो, कृष्ण के भक्त हो, सब कुछ है, मगर इस श्लोक के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है प्रॉब्लम? शांत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो निष्काम नहीं है, इसलिए शांत नहीं हो रहा है। श्लोक पूरा करना पड़ेगा तो भी होएगा, तो आधा आधा अधूरा काम फिर वो काम नहीं करता है। करना है तो पूरा। तो मेरे को भी जब भक्ति में आया तो मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, शांत बोलते हैं लोग, शांत शांत। आया तो 2-4 साल शांत था, उसके बाद तो शांति सारा भंग हो गया। क्या हो गया एकदम से? उसको निष्काम के अंदर गड़बड़ हो गया, इसलिए शांत का अनुभव नहीं हो रहा है। निष्काम होने के बाद शांत का अनुभव तुरंत होएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि राधा गोविंद महाराज उसमें भी चर्चा करते हैं कि सूरज आना और कोहरा निकल जाना, इसमें बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं है, ये कोई बहुत छोटा प्रोसीजर है। सूरज उगता है, उगने के पहले ही जैसे उगना चालू हो जाता है वैसे ही कोहरा नष्ट हो जाता है, और इतने अच्छे से नष्ट हो जाता है कि फिर से कोहरा नहीं आता है। थोड़ा नष्ट किया, फिर से थोड़ी देर के बाद आया, फिर से नष्ट हो, ऐसा नहीं होता है। एक बार सूरज बाहर आता है तो कोहरा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, फिर बाद में आने का संभावना नहीं होता है, फिर बाद में रात में आएगा। मगर सूरज जब तक रहेगा तब तक कोहरा नहीं रहेगा। और ये जो प्रोसेस है, ये जो कार्य है, इसमें टाइम का बहुत बड़ा गैप नहीं है, ये बहुत कम टाइम है। हाँ, तो इतना ही टाइम भक्ति करने का, भगवान की भक्ति करने का, और हृदय के अंदर के जो पाप में भावनाएं हैं और ये वाला पाप है, नष्ट होने का टाइम इतना ही है, इतना ही छोटा है। श्रील प्रभुपाद का एक वीडियो है, प्रभुपाद बोलते हैं मुक्ति पाने के लिए कितना देर लगता है। प्रभुपाद, एक भक्त पूछ रहा है, प्रभुपाद उसको प्रश्न भी कंप्लीट नहीं करने देते, उसके पहले ही जोर से बोलते मैं इन अ मोमेंट आप भी हो सकता है। ये कोहरा के उदाहरण, ये जो प्रभुपाद वहां पे बोल रहे हैं, तो ये इस श्लोक का प्रेजेंटेशन है। वो एक छोटी तरीके से देखा जाए, कितना देर लगेगा, कितना देर, आप निष्काम हो जाओ बस, बाकी तो कुछ करने का जरूरत नहीं। वो जो भक्ति है शुद्ध है, उस भक्ति के वजह से जो निहार ही वह भास करा फटाफट खत्म हो जाएगा, उसको कुछ देर नहीं लगने वाली। तो इसलिए हमें इस श्लोक की प्रचिति क्यों नहीं आती है? मेरे को तो यही प्रश्न था, मेरे को बाकी कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि अपने बाकी 2 मार्ग तो अपने से होने नहीं वाले, पहले ही देख लिया है कि ये सब तपस्या वगैरह कुछ नहीं होता है। कलयुग का जीव कितना भी बोले कि हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं। 5 दिन चलता है, 6वें दिन पिछले 5 दिन का निकाल के 6वें सब मिक्स करके सब कर देता है कि नहीं। वो एक कोर्स है जिसमें वो लोगों को 15 दिन बिना बोले बिना कुछ किए सब मुंह बंद, 15 दिन बंद मुंह, है कि नहीं। वहाँ पे प्रसाद भी वहाँ पे लिखा होता है, चपाती के डब्बे पे चपाती लिखा है, राइस लिखा है, दाल लिखा है, चमचा लिखा है, वाटी लिखा है, बेसिन है, यहाँ पे धोना है, यहाँ पे कचरा डब्बा। कुछ बोलने का नहीं, 15 दिन कुछ बोलने का नहीं है। ही एक कोर्स बाजू में अपने पुणे के पास में ही है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि फिर
बेचारे वो मेरी बोलती बंद कर देंगे शायद। तो वापस आने के बाद ऐसा लगता है कि अभी शांत हो गया अब आदमी। तो हमारे गए थे एक पहचान वाले, तो वापस आए तो मैंने उनके घर वालों को पूछा शांत हुए है क्या? अरे बोले 15 दिन का निकाल रहे हैं अभी, वापस गए वाला। तो ये बाकी के जो मार्ग बताए गए तपस्या ये सब करना भी चालू कर दे तो चलेगा 5-6 दिन गाड़ी, उसके बाद पिछले का निकाल के सूद के साथ वसूल करेंगे सब कुछ। कुछ लोग श्रावण मास, कुछ लोग ये मास वो मास करते हैं, ये खाएंगे नहीं वो खाएंगे नहीं। जिस दिन हो गया वो रात में 12 बजे प्रिपरेशन चालू कर, सवेरे खाना है, पूरे महीने भर का खाना है, छोड़ दिया, महीने भर खाया नहीं हम। तो ये मार्ग काम नहीं करने वाले। हम कितना भी उसके हमारे ऊपर देख के कर चर्चा अपने ऊपर विचार करके समझ में आ जाए कि हम लोग भक्ति कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर भक्ति करने के बाद जो इफेक्ट होने वाले हैं कि कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में ये जो अनुभव होने वाला है वो अनुभव तभी होगा जब वासुदेव परायणा, उसी श्लोक का भाग है। जैसे उस श्लोक का भाग निष्काम है, उसी तरह इस श्लोक का भी भाग है वासुदेव परायणा। वासुदेव परायण अगम वासुदेव परायणा होगा तो अगम दुन्वंती कार्ष निहार यो भाग तब होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन वो उसी में भी ऐसा ही है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण मेरे को मिला कुछ दिन पहले। मेरे को एक शहर से फोन आया, बोलते हैं हमारा अभी आज इस श्लोक के ऊपर जब चर्चा करने का टाइम है तो मेरे को उस इंसिडेंट के साथ में कनेक्ट कर पाया, पहले नहीं कर पाया। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोलते हैं हमारा एक उनका लड़का है, बहुत अच्छे घराने के लड़के, पैसा है, सब कुछ है, यंग लड़का है 25 साल का, मगर उसको एक ही गलत आदत है, उसको वो पीता है, रोज पीते रहता है। उन्होंने बहुत सब जगह से ट्राई मार दिया, कुछ नहीं होता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके गए, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किया, ये किया वो किया, दवाई दिया, कुछ काम नहीं करता है। फिर उन्होंने उसको आके इस्कॉन मंदिर में छोड़ दिया। 3 महीना इस्कॉन मंदिर में रहा। तो पूरी हिस्ट्री में उसके जब उसने पिया नहीं वो दिन है सिर्फ वो 3 महीने इस्कॉन मंदिर में रहने के। ये निहार ये वो भास कर रहा है बेचारा, कुछ कामना नहीं है उसकी, निष्काम का अपना भगवान की सेवा कर रहा है। तो जैसे फिर से 3 महीने के बाद वापस गया तो फिर से चालू कर दिया उसने। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद वो निष्कर्ष पे आए कि हमको इसको इस्कॉन को दे देना चाहिए। इसको सुधारने वाले पूरी दुनिया में एक ही है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोले आप ये हमारा मंदिर तो नहीं लगा, क्योंकि हमारे शहर का मंदिर उसको नहीं लगा, क्योंकि इसका हिस्ट्री उसको पता है। तो आप इसको पैक करके कहीं और भेज दो, जिसको बिना उसका CV के भेज दो, हाँ उसका प्रीवियस क्रेडिट, तो हम गारंटी देते पूरा ज़िंदगी भर हम मांगने नहीं आएंगे, उसको उधर ही रहने दो। हाँ, मगर वो एक ही जगह पे इस प्रवृत्ति से हमने देखा है कि दूर रह सकता है अगर वो हरे कृष्णा मंदिर में रहेगा। तो मैं बोला देखो कितना ज्वलंत उदाहरण है कि उसको थोड़ा सा भी भक्ति करना चालू कर देते तो बोले वो कम से कम जितना देर रहेगा उतना देर तो कम से कम ये पाप से बचा रहेगा। तो उसकी कोई भावना नहीं है, उसके वो बहुत अच्छा है, जब भी करता है सेवा भी करता है, एक ही चीज़ कर नहीं पाता है। वो खुद भी बोलता है करनी मेरे करने छोड़ने की इच्छा है मगर मैं कर नहीं पाता हूँ। मगर वो जब मंदिर में रहता है सेवा करते रहता है तब ये चीज़ें उसको सताती नहीं है। तो मेरे को लगा कि शायद ये उदाहरण थोड़ा थोड़ा मैच करता है आप आज के क्लास के साथ, इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश की। तो हमारे जीवन में भी जितना वासुदेव परायणा के ऊपर जोर देंगे, वो बहुत कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं लगता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये जो कार्य है, मैंने जो आपको प्रोसेस दी गई है वो आसान है, इट्स सिंपल। वो क्या है सिंपल का मतलब सरल है, मगर आसान नहीं है। आसान नहीं मतलब सब कुछ भगवान के लिए करने, हमारे लिए नहीं करने। जिंदगियां चली गई हमारे लिए करते करते, तो उस कॉन्शियसनेस को बदल के सब कुछ भगवान के लिए करने का वो जो टर्न करना है कॉन्शियसनेस, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है, मगर वो हो जाएगा तो बाकी बहुत
एकदम आसान चीज़ हो सकती है। तो मेरे को थोड़ा बहुत जो कुछ समझा महाराज से सुनने के बाद इसको बताने की यहाँ पे कोशिश की। कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्ण।